رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ پولیس ہال میں پولیس افسران نے اہم میٹنگ رکھتے ہوئے یہاں کے جرائم پر کنٹرول کرنے کے تحت بات چیت کرتے ہوئے اچھی ڈیوٹیز نبھانے والے پولیس افسران کو دیے اپریسیشن لیٹرز۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے نے زیس گلوبل کیپیبلٹی سینٹر کا کیا افتتاح۔ گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم نے اپنے کلیکٹر ہال میں 17 نومبر کو ہونے والے ITF سپورٹس ایونٹس کی تیاریوں کو جاننے کے تحت منعقد کی اہم میٹنگ۔ گلبرگہ شہر میں پھر سے 2 چوری کے سنسنی خیز واقعات آئے سامنے۔ گلبرگہ آٹو ڈرائیورز کو ای کوڈ قوانین پر چلنا ہوگا بے حد لازم، ACP ٹریفک پولیس محمد اسماعیل نے کیا اعلان۔ حضرت مخدوم سید شاہ احمد قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے عروس کے پیش نظر مراسم سندل اور دیگر رسومات کیے گئے مکمل۔ آج کی اچھی بات، ہم سبھی دکھوں اور تکلیفوں سے گھرے ہوئے ہیں اور سبھی کی تکلیفیں اور دکھ الگ الگ ہیں، جدا جدا ہیں۔ بس فرق اتنا سا ہے کہ کسی کو چھپانے کا ہنر نہیں آتا اور کوئی اپنی مسکراہٹ کے پیچھے اپنی سبھی تکلیفیں پریشانیاں آسانی سے چھپا لیتا ہے۔ پیش کرتے ہیں گلبرگہ شہر کے اہم خبروں کی تفصیلی معلومات۔ گلبرگہ ضلع SP اجرو سنیواسلو IPS نے آج گلبرگہ ضلع پولیس ہاؤس میں سبھی افسران کے ساتھ ایک اہم میٹنگ منعقد کی اور گلبرگہ شہر میں بڑھتے ہوئے جرائم کی طرف توجہ کرتے ہوئے پولیس افسران کو اپنی ڈیوٹیز کو اچھے سے نبھانے کی ہدایت کی۔ ناظرین، گلبرگہ ضلع SP مسٹر اجرو سنیواسلو IPS نے آج گلبرگہ ضلع پولیس ہاؤس میں ماہانہ کرائم جائزہ میٹنگ کا انعقاد کرتے ہوئے یہاں کے کرائمز اور جرائم پر نظر ثانی کرنے کے بعد پولیس افسران سے بات چیت کی اور سبھی کو اپنے فرائض بخوبی سے نبھانے کی تاکید کی۔ ساتھ ہی یہاں پر اچھی ڈیوٹی انجام دینے والے پولیس افسران اور عملے کو تعریفی خطوط اپریسیشن لیٹرز دیے گئے اور انہیں مستقبل میں بھی اسی طرح کے فرائض انجام دینے کی ہدایت دی گئی۔ اس موقع پر گلبرگہ ضلع کے ADPO اور تمام پولیس افسران یہاں موجود دکھائی دیے۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے نے بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے زیس گلوبل کیپیبلٹی سینٹر کا افتتاح کیا۔ ناظرین، بنگلور شہر میں زیس گلوبل کیپیبلٹی سینٹر کا افتتاح کرتے ہوئے پریانک کھرگے نے بتایا کہ اس سینٹر کے ذریعے سے کرناٹکا میں 600 سے زائد پیشہ ور افراد دنیا کے لیے اہم اختراعات میں حصہ ڈالیں گے اور یہ سینٹر ہندوستان کی ریاستوں کی پہلی GCC پالیسی جاری کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے، جو کہ کرناٹک کو اس شعبے میں عالمی ہنر اور سرمایہ کاری کے لیے ایک اعلیٰ مقام کے طور پر جگہ دے گا۔ اس پالیسی کا مقصد 500 نئے GCCs کو راغب کرنا اور 3,50,000 نئی ملازمتیں پیدا کرنا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہم سبھی ہنرمندی اور طبی مصنوعات کے انکیوبیشن میں زیس کے ساتھ شاندار شراکت داری کے لیے بے حد منتظر ہیں۔ گلبرگہ DC فوزیہ ترنم نے گلبرگہ ضلع میں شروع ہونے والے ITF مین ٹینس ٹورنامنٹ کے پس منظر میں اعلیٰ حکام کے ساتھ ایک اہم میٹنگ منعقد کی۔ ناظرین، آنے والے 17 نومبر سے گلبرگہ شہر میں بڑے ہی اعلیٰ پیمانے پر ITF مین ٹینس ٹورنامنٹ رکھا جائے گا، جس کی تیاری اور اہم نکات کا جائزہ لینے کے لیے فوزیہ ترنم نے اپنے اعلیٰ حکام کے ساتھ اپنے کلیکٹر ہال میں ایک میٹنگ منعقد کرتے ہوئے تبادلہ خیال کیا۔ ساتھ ہی عہدیداروں کو انہوں نے ہدایت دی کہ وہ اس ٹورنامنٹ کے لیے ضروری تیاریاں کریں اور ہر طرح کی ضروری اور آسان سہولیات کو اچھے طریقے سے سبھی کو مہیا کرتے ہوئے اس ٹینس ٹورنامنٹ کو کامیاب بنائیں۔ اس موقع پر DC صاحبہ فوزیہ ترنم کے ساتھ DCP کنیکا سیکریوال، کارپوریشن کمشنر بھونیش پاٹل دیویداس، ڈپٹی کلیکٹر اور دیگر اعلیٰ حکام یہاں موجود دکھائی دیے۔ گلبرگہ شہر میں پھر سے 2 چوری کے سنسنی خیز واقعات پیش آئے، جس کے چلتے اشوک نگر پولیس اسٹیشن اور یونیورسٹی پولیس اسٹیشن میں کیسز کو بک کیا گیا۔
जी नाजरीन, तुलजप्पा हुगार नामी शख्स का घर जो कि शहर के गुडुटाई नगर में वाक़ है, उसके घर पर लगे हुए ताले को तोड़कर चोरों ने 1,35,000 रुपये नकद चोरी कर लिए। साथ ही 10 ग्राम सोने की कान की बालियां, 50 ग्राम चांदी के पूजा करने वाली अशिया चोरों ने चुराए और फरार हो गए। बताया गया कि तुलजप्पा हुगार अपने घर वालों के साथ तिरुपति गया हुआ था, जिसके चलते बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने ये सनसनीखेज कारनामा अंजाम दिया। इसी के साथ ही नाजरीन को बता दिया जाए कि जेवरगी रोड पर वाक़े अटल बिहारी वाजपेयी नगर बारंगे में कायम एक घर से 1,18,600 रुपये नकद चोरी होने की वारदात भी सामने आई है। बता दें कि सत्यनारायण माड़ीवाला के घर पर लगे हुए ताले को तोड़कर 35,000 रुपये मालियत के 5 ग्राम सोने की कान की बालियां, 28,000 रुपये मालियत के 40 तोला चांदी के चेन के 4 सेट्स के साथ और भी कई सारे सोने चांदी के जेवरात, 50,000 रुपये नकद चुराकर चोर रफू चक्कर हो गए। जिसके बाद घर के मालिक ने यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में इस चोरी के केस को दर्ज करवाया, जिसकी तफ्तीश अभी जारी है। गुलबर्गा ऑटो ड्राइवर्स के लिए अहम और ज़रूरी खबर। जी हां, गुलबर्गा शहर के एसीपी ट्रैफिक मोहम्मद इस्माइल शरीफ, ट्रैफिक इंस्पेक्टर महांतेश पाटिल और स्टाफ बाबू मियां आसिफ नागराज ने ऑटो ड्राइवर्स के साथ अपने शहर के रोड के किनारे पर तमाम ऑटो ड्राइवर्स को बुलाकर एक ज़रूरी मीटिंग करते हुए उन्हें अहम जानकारियां फराहम की। जी हां, गुलबर्गा ऑटो ड्राइवर्स को इस मीटिंग में बताया गया कि बहुत जल्द गुलबर्गा सिटी में ई कोड कानून शुरू होने वाला है, जिसके तहत तमाम ऑटो ड्राइवर्स को ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक अपने ऑटोस को चलाना बेहद ज़रूरी और लाजिम होगा। ये ई कोड कानून कर्नाटका के कई सारे शहरों में आ चुका है और बहुत जल्द ये ई कोड अब गुलबर्गा में भी आ जाएगा, जिसके बाद ऑटो ड्राइवर्स को हर छोटे से छोटे रूल और कानून की पाबंदी करते हुए अपने ऑटोस को चलाना लाजिम होगा, वरना फिर रूल्स ब्रेक करने वाले, कानून को तोड़ने वालों के नाम डायरेक्टली ई कोड में सबमिट हो जाएंगे, जिसके बाद आपके नाम पर हर रूल को ब्रेक करने पर फाइन पड़ते जाएगा और चालान कटते जाएगा, जो कि आपको जल्दी मालूम नहीं होगा। यानी कि एक साथ बड़ा अमाउंट जमा होकर आपको फाइन नोटिस पे ऑर्डर आ सकता है, जो कि आप सभी के लिए बड़ा मसला पैदा कर सकता है, क्योंकि अब तक यूं था कि रूल ब्रेक करने पर डायरेक्टली पकड़कर आप पर 100, 200, 500 का चालान काट कर छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। आपके हर गलती को ई कोड में ऐड करके आप पर भारी फाइन लगाया जा सकता है, जो कि ई कोड के तहत बहुत जल्द गुलबर्गा शहर में आ रहा है। मज़ीद यहाँ पर इस्माइल साहब ने ऑटो ड्राइवर्स को बताया कि ई कोड कानून के तहत तमाम ऑटो ड्राइवर्स को अब होशियारी और समझबूझ के साथ अपनी ऑटोस को चलाना बेहद ज़रूरी है, लिहाजा सभी ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस को आप फॉलो करें, क्योंकि फिर बाद में अगर कोई भी अपने अनपढ़ होने का, रूल समझ नहीं आने का बहाना बनाएगा तो उस वक्त आपकी कुछ भी नहीं सुनी जाएगी। ऐसे हालात में सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन बाकी रह जाएगा कि आप गाँव खेड़ों में जाकर अपने ऑटो चलाएं। लिहाजा गुलबर्गा ऑटो ड्राइवर्स को इन तमाम रूल्स, रेगुलेशंस, कवानीन पर ध्यान देते हुए अपने कामों को करना बेहद लाजिम हो गया है। लिहाजा सभी ऑटो ड्राइवर्स से गुजारिश की जाती है कि वो अपनी सूझबूझ और होशियारी के साथ ई कोड कानून के तहत अपने ऑटोस को चलाएं। साथ ही यहाँ पर ऑटो ड्राइवर्स को ये भी कहा गया कि हुकूमत की बनाई गई नम्मा यात्री ऐप सहूलत का आप सभी फायदा उठाते हुए काम करें, क्योंकि ये नम्मा यात्री ऐप ऑटो ड्राइवर्स को अच्छी सहूलत फराहम करने के लिए ही बनाया गया है। गरीब तबके की जरूरतमंद आवाम के लिए गुलबर्गा शहर में इंदिरा कैंटीन को फिर से शुरू कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बनाए जाने वाला खाना, बेचा जाने वाला पकवान साफ, सही और अच्छा नहीं दिया जा रहा है। यही शिकायत लिए जय कन्नड़ीगरा सेना मेंबर्स ने डीसी ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। जी नाजरीन, कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर हुकूमत पर दबाव डालते हुए यहाँ पर ज़रूरतमंदों को, गरीबों को थोड़े से पैसे में अच्छा खाना खाने की सहूलत फराहम करने की नीयत से 5 इंदिरा कैंटीन्स को खुलवाया, जिसमें कम पैसों में तो खाना दिया जा रहा है, लेकिन इन इंदिरा कैंटीन्स में दिए जाने वाले खाने में कीड़े निकलने की शिकायतें मिल रही है। साथ ही इन इंदिरा कैंटीन में साफ सफाई पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन्हीं मसले और परेशानियों को हल करने के मुतालबे के साथ जय कन्नड़ीगरा सेना मेंबर्स ने डीसी ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया और साथ ही एक मेमोरेंडम दाखिल किया।
जय कन्नड़ीगरा सेना मेंबर्स ने यहां पर बताया कि शिकायतें मिलने पर जब उन्होंने इंदिरा कैंटीन के खाने का मुआयना किया तो कैंटीन चलाने वाले आदमी ने खुलासा किया कि जिस किसी को भी ये इंदिरा कैंटीन में फूड सप्लाई करने का ऑर्डर दिया गया है, टेंडर दिया गया है, वो इंसान सही तरह से यहां पर खाना सप्लाई नहीं कर रहा है। तो फिर टेंडर कनेक्टेड शख्स से भी मुलाकात की गई। उसने बताया कि फूड सप्लाई करने वाला, टेंडर वाला एमएलए एमपीज बड़े बड़े लोगों का खास आदमी है, इसीलिए इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। लिहाजा ऐसे में जय कन्नड़ीगरा सेना ने यहाँ पर सवाल उठाया कि अगर एमएलए एमपीज बड़े बड़े लीडर्स का कोई आदमी, कोई इंसान खास होता है तो फिर क्या उसे इस तरह का गंदा सड़ा हुआ, कीड़े भरा हुआ खाना गरीब लोगों को खिलाने की इजाजत मिल जाती है? और इस तरह का गंदा खाना खाकर अगर कोई इंसान मर जाता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सवालात लिए जय कन्नड़ीगरा सेना मेंबर्स ने इंदिरा कैंटीन से जुड़े हुए इन मसले मसाइल को जल्दी से हल करने की और इसकी छानबीन करने की हुकूमत से डिमांड की है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों, हदीसों को, दीनी बातों को आम करने, नबी की जिंदगी की बेहतरीन मिसाल कायम करने में औलिया अल्लाह का बहुत बड़ा हाथ रहा है। सरजमीन हिंद में इस्लाम की तालीमात, दीनी तबलीग की शुरुआत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खास अता और औलिया अल्लाह की खास और कड़ी मेहनतों का समरा है। साथ ही खानवादा चिश्तिया ने भी इस काम को अंजाम देने में अहम किरदार निभाया है। आज से 550 साल पहले तेलंगाना रियासत के नारायणपेट जिला कोलमपल्ली की सरजमीन पर अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत कताल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हुए दीनी तालीमात को आम करने का बीड़ा उठाया और कुफ्र के अंधेरों को मिटाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग को आगे बढ़ाया। दीनी तालीम को यहाँ आम करते हुए सभी मज़ाहिब के लोगों को मोहब्बत का उन्होंने वो जाम पिलाया कि सभी अलग अलग मज़ाहिब के मानने वाले आज भी हजरत की तारीफ करते हुए नहीं थकते और उन्हें नज़र नियाज का नजराना पेश करते हैं। बता दिया जाए कि आपका इसमें शरीफ इस इलाके में हर तरफ आज भी गूंजता रहता है और हजरत का पूरा नाम हजरत मखदूम सैयद शाह अहमद कताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह है और जुमेरात के दिन आप हजरत का 550वां सालाना संदल मुबारक की तकरीब बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। जी हाँ, 6 नवंबर चारशंबे के दिन बाद नमाज मगरिब हजरत सैयद हफीजुल्लाह हुसैनी क़िबला सज्जादा नशीन ने तमाम मुरीदीन के साथ मिलकर हजरत के दौलत खाने पर फातिहा और लंगर का एहतिमाम किया। साथ ही जलसे सीरत औलिया का भी यहाँ इनेकाद अमल में आया। इस जलसे का आगाज सैयद हफीजुल्लाह हुसैनी साहब ने क़िराअत से किया और कई सारे बड़े बड़े आलम दीन और हस्तियों ने यहाँ पर खिताब करते हुए हजरत की बेहतरीन जिंदगी पर रोशनी डाली और बाद नमाज इशा यहाँ महफिल समा सजाई गई। और फिर 7 नवंबर जुमेरात बाद नमाज फज्र हजरत क़िबला के दौलत खाने से जुलूस संदल गली गली रास्तों से गुजरता हुआ आस्ताने कतालिया पहुंचा। फिर सलाम फातिहा के बाद अवाम में तबरुकात तकसीम किए गए। इस मौके पर हजरत के चाहने वाले मुरीदीन और अवाम की भारी तादाद यहाँ पर देखने को मिली। सैयद शाह रहमतुल्लाह हुसैनी साहब और सैयद शाह कलीमुल्लाह हुसैनी साहब ने यहाँ पर मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। साथ ही सैयद शाह आयतुल्लाह हुसैनी जानशीन सजादा नशीन आस्ताना कतालिया कोलमपल्ली ने यहाँ पर शरीक तमाम मेहमानाने खुसूसी की शॉलपोशी और गुलपोशी करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। लिहाजा यहाँ पर बड़े ही उम्दा अंदाज के साथ तमाम मरासिम संदल और दीगर रसूमात को अदा किया गया। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।